I welcome everyone to the second part, that is section B of the chemistry practice paper that we are discussing these days. So, here is section B. Section A I have already shared with you. So, as promised, I have come with section B now, which has very short answer type questions. Very short answer type means 2 markers. So, here you have in this section 5 questions with internal choice in only one of them, and each question carries 2 marks. Question number 17 of the paper, that is the first question of section B, is 20 ml solution is taken out from a flask which contains 200 ml of 0.2 molar aqueous solution of NaOH. So out of the flask, you are just taking 20 ml. So will it change the molarity of the two portions? That is, if you take 20 ml out, 180 ml is left in the flask. So is it going to change the molarity of two portions? The answer will be no. Molarity will be same for both the portions, as 20 ml which I have taken out will contain lesser number of moles. So what is molarity? Moles of solute divided by volume of solution in liters. 1 liter is 1000 ml. So accordingly, in 20 ml there will be lesser number of moles, and in 200 ml there were more number of moles. So if you take out some quantity from a container, it is not going to change the molarity. Molarity of two portions will remain the same. Next question. Question number 18. You have to write any two conditions for LCAO, linear combination of atomic orbitals. When atomic orbitals are combining to give rise to molecular orbitals, we have done this under MOT, molecular orbital theory. तो उसमें क्या होता है, देयर आर 3 कंडीशंस. तो आपको आंसर में एनी 2 लिखनी है, पर आप जब भी रिवाइज करोगे यू शुड ऑलवेज राइट ऑल द 3, because any other type of question can also be framed. So here the conditions, the answer is here. The conditions are: the combining orbitals must have the same or nearly the same energy. The combining atom should have the same symmetry around the molecular axis. And the combining atom should overlap to maximum extent for more strength in the bond. Simple. So any two you have to write. कभी कोई किसी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली लिखा है एनी 2, एनी 1, एनी 3, स्टिक टू दैट. 2 पूछा है तो 3 लिख के आने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली और उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में बोला गया है, नॉट मोर देन दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. इज टेम्परेचर एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? फॉर सम क्वेश्चंस आई हैव केप्ट द आंसर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. इससे आपको ये पता चलेगा कि 2 मार्कर है तो मुझे कितना आंसर लिखना है. समटाइम्स वी कीप ऑन राइटिंग, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देते हैं, कीवर्ड्स लिखना भूल जाते हैं. सो दैट इज़ टू बी अवॉइडेड. नाउ सी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. इज टेम्परेचर एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? येस और नो में होना चाहिए आंसर. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आई शुड बी वेरी क्लियर, विच इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा इज इट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई एम सेइंग यस, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सप्लेन योर आंसर. इट डज नॉट डिपेंड, बिकॉज इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. अगर आपके पास एक कंटेनर में बॉइलिंग वाटर है या किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर है एक कंटेनर में, तो वो 1 लीटर का टेम्परेचर भी उतना ही होगा और 10 का भी उतना ही होगा इफ़ यू आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर. तो उससे ये नहीं होगा कि मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, कंडीशंस मैटर. तो आप किस कंडीशन की बात कर रहे हो, अगर वो फिक्स्ड है तो क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो येस, टेम्परेचर इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर. Now the next question is balancing the redox reaction.
ये हर बार होता है पेपर में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेडॉक्स चैप्टर, कि आपको पूरा चैप्टर करने के बाद अल्टीमेटली एप्लीकेशन क्या होता है, बैलेंसिंग. तो आपको बैलेंसिंग या तो एल्कलाइन मीडियम में देंगे स्पेसिफिकली या एसिडिक मीडियम में. ये क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस. एज यू कैन सी आई हैव टू बैलेंस दिस और दिस, एनी वन. बट हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों ही बैलेंस करेंगे. करेक्ट. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इन एल्कलाइन मीडियम, मीडियम तो हम लास्ट स्टेप में कंसीडर करेंगे. एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, वी विल कंसीडर OH माइनस एंड H2O wherever required. So first of all, you can see that the oxidation states, if it is S8 एलिमेंट है तो ज़ीरो होती है. S2 माइनस में आपको दिख ही रहा है 2 माइनस है. एंड हियर इट विल बी अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे निकालोगे आप, सपोज इट इज़ X, so it is twice of X because there are 2 sulfur atoms plus thrice of -2. एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6 इक्वल टू दिस ओवरऑल चार्ज. तो ये क्या हो गया, 2x -6 इक्वल टू -2. 2x इज इक्वल टू -2 + 6. इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी, +6 हो गया. इट इज़ +4 एंड देन x इज +2. तो मैंने क्या किया, आई हैव कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मैं यहाँ +2 लिखूंगी, आई विल नॉट राइट +4, क्योंकि पर एटम होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. 2 एटम्स हैं, एक की +2 है सल्फर, ये 0 था और ये -2 है. नाउ दिस इज एन इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन में, सल्फर का ही 0 से -2 में जा रहा है. दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सल्फर 0 से -2 में जा रहा है, ठीक है. एंड सल्फर ही 0 से +2 में भी जा रहा है. सो इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच सल्फर एटम. सो जब भी आप डिसप्रपोर्शनेशन, अब देखिए यहाँ पे हमारा डिसप्रपोर्शनेशन आ गया तो मैं टाइप ऑफ रेडॉक्स भी साथ साथ रिवाइज कर पा रही हूँ. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिवाइज. और जब भी कहीं पे लगे कुछ भूल गए हैं, गो बैक टू NCERT, ओपन दैट पेज विदाउट डिले एंड रीड दैट पर्टिकुलर थिंग. नॉट ओनली रीड, उसको लिख लो साथ साथ एक बारी, तो और परमानेंटली आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है. तो जब भी आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हो, यू शुड डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टू अवॉइड कन्फ्यूजन. थोड़ा इजी हो जाता है. जनरली क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता कौन से मेथड से करना है. तो S8 गिविंग S2 माइनस और S8 गिविंग S2O3 2 माइनस, हमने सेपरेट कर लिया. नाउ इफ़ आई राइट क्लियरली, 0 से -2 में जा रहा है, बट यहाँ पे 8 सल्फर हैं, तो पहले मैं यहाँ भी 8 करूँगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसका नंबर सबसे पहले बेटा आपको इक्वल करना है, ठीक है. देन यू हैव 0 से +2 में जा रहा है, तो आपका क्या है, यहाँ पे 2 सल्फर हैं, यहाँ पे 8 सल्फर हैं. तो मैं इसको अगर 4 कर लूँ, 4 × 2 8, तो मेरा ये भी सल्फर के एटम्स इक्वल हो गए दोनों साइड. अब 0 से -2 में कैसे जाएगा, बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन. आपके पास कितने सल्फर हैं, 8. तो अगर एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 8 लेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. दिस वी हैव रिटन. अब आप यहाँ देखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, 8 × 2 - 16 नेगेटिव चार्जेस. दिस साइड ऑल्सो 16 नेगेटिव चार्जेस, 8 सल्फर 8 सल्फर. तो मेरा जो फर्स्ट रिडक्शन हाफ है वो हो गया बैलेंस. आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज इट इज़. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू बैलेंस दिस पोर्शन, और फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे लास्ट में. दैट विल बी माई फाइनल इक्वेशन, राइट. सो लेट अस सी. ओके, S8, अच्छा 0 से +2 में कैसे जाता है, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. यहाँ पे 8 सल्फर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 16. फेयर इनफ. यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो मेरी बैलेंसिंग ठीक जा रही है. ओके, तो मैं अभी कहाँ पे पहुँची हूँ, आई हैव, ये तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी, लास्ट में इसको ऐड करेंगे. S8 इज़ गिविंग मी, ये लिख रही हूँ मैं प्रॉपरली, 4S2O3 2 माइनस + 16 इलेक्ट्रॉन्स.
नाउ दिस साइड देर इज़ नो चार्ज, बट इधर आपके पास 4 इंटू 2 8 माइनस एंड 16 माइनस 16 प्लस 8 कितना होता है 24। तो आपके पास 24 नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे एंड देर इज़ नो नेगेटिव चार्ज, ज़ीरो नेगेटिव चार्ज हियर। तो मुझे बैलेंस करने के लिए इक्वल करना है, तो मुझे या तो यहाँ कुछ पॉजिटिव डालना पड़ेगा, चार्जेस जो हैं आपके कैंसिल हो जाएं, या मुझे लेफ्ट साइड में कुछ नेगेटिव डालना है। बीइंग एल्कलाइन मीडियम आई हैव चॉइस ऑफ OH माइनस एंड H2O. सो इफ दिस साइड आई ऐड 24 OH माइनस, तो मेरे 24 नेगेटिव चार्जेस आ गए, ज़ीरो से मेरे कितने हो गए, यहाँ भी 24 हो गए। सो इन अ वे आई एम चेकिंग कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है ना, ठीक। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में देर इज़ नो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है 4 इंटू 3 12, बट हाइड्रोजन एक भी नहीं है, और यहाँ मैंने 24 हाइड्रोजन डाल दिए। तो आप क्या करोगे, राइट साइड में आप इतने वाटर मॉलिक्यूल्स डालिए कि आपके पास 12 ऑक्सीजन आ जाएं, 12 तो ऑलरेडी हैं, 12 और आ गए, and then you have 12 into 2 24 hydrogens, so this is also balanced. तो अब हम क्या करेंगे, we will simply write the two balanced parts. एक balanced part आपका already encircled है और दूसरा हो गया आपका ये वाला, and then we will add them. So I am writing it again. I hope you are noting down. इसका फ़ायदा बस यही है कि जब आपको टाइम मिले तो आप इसको अपने पेस पे रिवाइज करो. That is the only purpose of making all these videos. I hope it will help you. तो अब मैं क्या करूँगी, I will write the two equations, half equations clearly. ठीक है. So the equations are, एक हमारी आई थी S8 plus 16 electrons. They are giving me 8 S2 minus, and then S8 plus 24 OH minus will give me 4 S2O3 2 minus plus 16 electron plus 12 H2O. Now you will add both the equations. आप ऐड कर दो दोनों को फाइनली. उससे क्या होगा, ऐड से 16 इलेक्ट्रॉन कैंसिल 16 इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग सही जा रही है हमारी. यहाँ पे 1 and 2 दो S8 हैं प्लस 24 OH माइनस हैं, एंड यू हैव 8 S2 माइनस. राइट साइड वाले हम सारे लिख देते हैं. फाइनली यू कैन चेक चार्जेस इक्वल, ऑल एटम्स इक्वल, तो हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक जा रही है. तो ऑल द एटम्स आर इक्वल. जल्दी से चेक कर लेते हैं. 8 इंटू 2 16 सल्फर, 8 इंटू दिस इज़ 2 माइनस है ना, 8 इंटू दीज आर सल्फर 8 एंड दीज आर 4 इंटू 2 8. तो यहाँ भी आपका 8 प्लस 8 16 हो गया, सल्फर डन. देन यू हैव 24 ऑक्सीजन्स, यू हैव 4 इंटू 3 12 प्लस 12 24 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए, एंड हाइड्रोजन्स यू कैन सी बोथ साइड्स 24. बट मैं अभी देख रही हूँ कि मेरी पूरी इक्वेशन अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है. सिंपलेस्ट जो हम बैलेंसिंग शो करते हैं, द सिंपलेस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन, इफ़ यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय नंबर देन गो फॉर दैट. तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा S8 प्लस 12 OH माइनस गिव्स 4 S2 माइनस प्लस 2 S2O3 2 माइनस plus 6 H2O. So this is my final answer. Now this is the optional part. हमें या तो वो बैलेंस करनी है या ये वाली एक बैलेंस करनी है. ये भी इजी है बहुत, कर लेते हैं जल्दी से. We have already done all this. तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आता जाएगा. So this is just for that purpose. Okay. So Fe2 plus changing to Fe3 plus, simple. कैसे होगा, by लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एक ही आयरन इधर है और एक उधर है, सो ठीक है, बैलेंस्ड. आफ्टर दैट Cr हेयर हैज़ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे आपने पहले निकाला था वैसे ही 2x माइनस 14 इक्वल टू 2 करोगे तो +6 आएगा. और यहाँ पे इट इज़ क्लियर, इट इज़ +3. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग बट द नंबर इज़ नॉट सेम, लाइक हेयर यू हैव 2 क्रोमियम एंड हेयर ओनली 1, तो पहले नंबर को इक्वल करो, अदरवाइज़ कभी भी बैलेंस नहीं होगी. Fe तो एक एक ही था दोनों साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी हमें. तो हमने क्या किया, आई विल राइट अगेन, हमने इसको
2 कर लिया. नाउ दिस इज चेंजिंग फ्रॉम 2+ टू 3+ बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. और Cr का क्या हो रहा है, +6 से +3 में कैसे जाएगा, बाय लूजिंग और गेनिंग. पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना, तो ये ज़रूर ले रहा होगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. अब +6 से +3 में कैसे जाता है, बाय टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन. बट बी केयरफुल, यहाँ पे 2 Cr हैं आपके, है ना, तो +3 की जगह मैं क्या लिखूँगी, +6 इलेक्ट्रॉन. अब बैलेंसिंग में सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट देर इज़ नो हार्म इन क्विकली रिवाइजिंग. अब Fe2+ Fe3+ में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन. Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब Fe2+ किसी के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो Fe2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. एंड देन डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 2 नेगेटिव 2 Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है डाइक्रोमेटाइन, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, हमने ये भी रिवाइज कर लिया साथ साथ. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस शुड बी सेम, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी कि ये भी 6 हो जाए. तो ये कहाँ से आ रहा है, Fe2+ और कहाँ जा रहा है, Fe3+. तो अब मेरी इक्वेशन बन गई 6 Fe2+ प्लस, इसको भी आप हाफ ऑफ करके कर सकते हो, बैलेंस लास्ट में ऐड कर दो. ये मैं दूसरे मेथड से पर्पसली बता रही हूँ आपको कि ये भी रिवाइज हो जाए. तो फाइनली हमारी अभी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको हर बुक में लिखी नहीं मिलेगी क्योंकि वो अंडरस्टूड होती है, बट कई बार हम भूल जाते हैं उसको करना, वो क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है बट नंबर अनइक्वल है तो सबसे पहले उसको इक्वल कर लो ऐसे नंबर लगा के. ठीक है, ईजी. ओके, नाउ दिस इज एसिडिक मीडियम. एज यू कैन सी हियर, एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या चॉइस होता है, H+N वाटर का चॉइस होता है. तो पहले मैं देखूंगी मुझे ज़रूरत भी है क्या. तो हियर यू हैव 6 × 2 + 12 चार्ज. यहाँ पे आपके पास है 2 नेगेटिव -2, तो इसका आउटकम क्या आया, +10. और यहाँ पे 6 × 3+ +18, यहाँ पे 2 × 3+ +16, तो ये कितना आया आपका, ये आपका आ गया 24+. नाउ आई हैव टू मेक देम इक्वल, दोनों साइड सेम चार्जेस होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि बैलेंस हुई है हमारी इक्वेशन. तो मेरे पास H+ का ऑप्शन है एसिडिक मीडियम में. मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर सकती हूँ जिस भी साइड करना है, तो यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, 14 और डालूंगी इसमें, तो मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा 14H+. अब जब 14H+ ऐड कर दिया तो राइट साइड में तो हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे भी फिर वाटर ऐड करना पड़ेगा. 14 हाइड्रोजन 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक कि क्रोमियम 2 हैं, आयरन 6 हैं दोनों साइड, एंड हाइड्रोजन 14 हैं, एंड ऑक्सीजन 7 है. सो माई इक्वेशन इज फाइनली बैलेंस्ड. दिस इज द फाइनल आंसर. तो आप सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, then you will get full marks step by step. Okay, now the next question is that for a spontaneous process, delta S total entropy change, randomness का change total should be greater than 0 according to second law. अब ये information आपको देके बोल रहे हैं, use this information to show that delta G must be less than 0 for spontaneous process. तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. तो हम ये 2 मार्क्स में कैसे शो करेंगे क्विकली, लेट अस सी. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस, ये एनसीईआरटी में किया हुआ है, डेल्टा एस सराउंडिंग. आपके पेपर में 11th 12th कहीं पे भी सीबीएसई सिस्टम में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता कुछ. और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो आई कीप रिपीटिंग, बहुत अच्छी बनी हुई है हमारी, यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम. तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ठीक है, आपने लिखा. नाउ
डेल्टा एस टोटल आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, ये तो है ही सिस्टम। और अगर मैं इसको डेल्टा एस को डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर लिखूं तो ये डेल्टा एच क्या होगा, सराउंडिंग्स, बट आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। तो एंथैल्पी चेंज मतलब अगर सिस्टम से बाहर एनर्जी जा रही है, हीट लॉस हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से अगर लॉस हो रहा है तो सिस्टम में आएगा। तो वट एवर इज सिस्टम्स लॉस इज सराउंडिंग्स गेन एंड वाइस वर्सा। तो हम इसको अगर डेल्टा एच बाई टी लिखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा सराउंडिंग, बट मैं अगर इसको सिस्टम की टर्म्स में लिखूंगी तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम, नेगेटिव कर देंगे, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, वी नो दैट डेल्टा एच टोटल शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मैं पूरे इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ टू सी। तो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, ठीक है, यहाँ से टी हटा दिया, इधर आ जाएगा टी डेल्टा एस टोटल। अब डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस, और अगर मैं इसका नेगेटिव कॉमन ले लूँ इट बिकम्स डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, ये है माइनस डेल्टा जी, इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स नेगेटिव। तो हमने प्रूव कर दिया जैसे एनसीईआरटी में किया हुआ है कि डेल्टा जी सिस्टम शुड बी, आप यहाँ पे सिस्टम लिख सकते हैं, हर जगह सिस्टम है ना, इट शुड बी negative for a spontaneous process. Now the section B is complete, okay, and then quickly very soon I'll come back with section C, D and E. I hope it will help you. All the best.